Hi guys, welcome to my YouTube channel. So today I'm gonna start a new playlist that is about the interview question of Excel that can be useful for data analyst role when you are applying. So we have a first question, that is what is pivot chart in Excel? Pivot chart क्या है Excel में और ये कैसे काम करता है? तो pivot chart in Excel is a dynamic interactive chart that is based on pivot table. सो पावर चार्ट हम किस लिए यूज़ करते हैं? बेसिकली अपने डाटा को अच्छे से विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए ये हमें यूज़ में आता है. तो ये क्या करता है, हमारे डाटा को ईजियर बना देता है अंडरस्टैंड करने के लिए. ये हमें इनसाइट ड्रॉ करके देता है अगर कितना भी बड़ा हमारा लार्ज डाटा सेट हो. तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे इंटरव्यू में? तो यू विल से अ पावर चार्ट इन एक्सेल इज अ डायनामिक इंटरेक्टिव चार्ट that is based on pivot table, and pivot chart it allow visualize and analyze the data in more intuitive and flexible way, and pivot chart automatically update as the underlying pivot table is modified. When we create any modification in our pivot table, then pivot chart, that modification is also we can see in our pivot chart. So this is the first question. And second question, how do you create a pivot chart? So let's see a Excel. When we go to Excel file, first we have to select our data. Then when we move to insert option, we can see here the option of pivot chart. So from here we can draw pivot chart of our data. Okay, now we have a second question, third question, that is what is difference between a bar chart and a pie chart? A bar chart in Excel displays the data as a bar arranged in horizontal or vertical column, while a pie chart displays data slice of circular pie. As you already know, बार चार्ट क्या करता है, हमारे डाटा को बार्स में अरेंज कर देता है इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉलम, जैसा भी अभी हमें चाहिए. पर पाई चार्ट क्या करता है, वो एक सर्कल लेता है, उसकी स्लाइस बना लेता है, ठीक है, और देन हमारे जो भी कॉलम्स होते हैं उनको परसेंटेज वाइज स्लाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है. ओके, so bar chart are typically used to compare values across categories, while pie chart are used to show the relative proportion of different categories. Okay, so सबसे ज़्यादा मेन बच्चों को क्या होता है कि पता होता है कि उस चीज़ के बारे में, पर इंटरव्यू में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते. So this will be helpful for them. You can learn or memorize from there that what is bar chart. Bar chart in Excel display data is bar arranged in horizontal or vertical column, while pie chart display data is a slice of circular pie. और bar chart क्या करता है, it typically used to compare values across the categories, but while chart are used to show relative proportion of different categories. pie chart हमें portion दिखाता है. Okay, so when deciding between the bar chart and pie chart, it's important to consider a type of data you are working with and the purpose of your chart. Basically कोई भी चार्ट सेलेक्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम उसमें क्या शो करना चाहते हैं. ठीक है, बार चार्ट आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ कैटेगरीज एंड वांट टू कंपेयर वैल्यू across them, and pie chart are useful when you want to highlight the relative size. Okay, this is the important word that you have to remember about the pie chart, that pie chart is useful to highlight the relative size or importance of different categories within a single data set. Okay, now we have a fourth question, how do you add data label to a chart in Excel? So basically data labels होते क्या है, like जो हम नीचे कुछ भी टाइटल दे देते हैं, या हम कुछ चार्ट के बारे में कुछ कैटेगरी नेम देना चाहते हैं, कोई वैल्यू उसमें हम दिखाना चाहते हैं, तो उसे हम डाटा लेबल्स कहते हैं. लाइक हमने बार चार्ट में बार शो करे, अब मैं चाहती हूँ कि हर बार की परसेंटेज वैल्यू भी मुझे उसमें शो हो, तो दैट इज कॉल्ड डाटा लेबल. सो डाटा लेबल हम कैसे ऐड करेंगे अपने चार्ट में? तो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट आवर चार्ट, देन वी विल सी अ प्लस आइकन, then check the data label box, and in the chart element section we will see a option to add a data label. Then we can select an option like value category name that we want to add in it. Okay, after that, this is most important, that what is data validation in Excel. Data validation in Excel is a feature that allow you to limit the type of data that can be entered into a cell or range of cell. Basically data validation हमें क्या करता है, एक फीचर है जो हमें प्रोवाइड करता है कि हम अपने डाटा पे लिमिट सेट कर सकते हैं कि बस इतनी ही रेंज तक हम अपने सेल्स में डाटा टाइप करेंगे, या हम डाटा टाइप भी उसका सेट कर सकते हैं कि इस वाली रो का ये डाटा टाइप होना चाहिए. ठीक है, तो ये डाटा वैलिडेशन ऑप्शन जब आप कोई भी अपनी टेबल इंपोर्ट करोगे तो इसे सिलेक्ट करना, तो इसे सिलेक्ट करके जब ऊपर डाटा ऑप्शन में जाएंगे ना, सो हियर यू कैन सी द ऑप्शन ऑफ डाटा वैलिडेशन. सो यू कैन सी
इसके कुछ रूल्स होते हैं, लिस्ट ऑफ, इसमें क्या है, यू कैन सी हेयर अ लिस्ट ऑफ रूल्स टू लिमिट द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी एंटर्ड इन अ सेल। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिट सेट कर सकते हैं हर रो की या हर सेल की, कि मुझे कौन सा टाइप चाहिए, किस लिमिट तक चाहिए, ये सब कुछ हम इसमें सेट कर सकते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट वी हैव अ क्वेश्चन, what type of data validation are available। so क्या क्या डाटा वैलिडेशन हमें अवेलेबल है एक्सेल में। so फर्स्ट है होल नंबर। होल नंबर क्या करता है, इट अलाउ यूजर टू एंटर ओनली होल नंबर विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। हमने बताया ना कि डाटा वैलिडेशन का काम क्या होता है, कि हम अपने किसी भी सेल की रेंज को, किसी भी रो की रेंज को या कॉलम की रेंज को सेट कर सकते हैं कि इसमें सिर्फ होल वैल्यू ही डलेगी, या इसमें सिर्फ डेसिमल वैल्यू ही हमें अप्लाई करनी है, कि डेसिमल की लास्ट 2 डिजिट होनी चाहिए, 1 डिजिट होनी चाहिए, ये सब कुछ हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सम टाइप्स है जो हमें डाटा वैलिडेशन में अवेलेबल है। फर्स्ट है होल नंबर, कि हम होल नंबर टू एंटर ओनली होल नंबर। देन आफ्टर दैट डेसिमल, टू एंटर ओनली डेसिमल वैल्यूज विद इन अ स्पेसिफिक रेंज। थर्ड इज लिस्ट, देन डाटा, it ensure that user enter a valid data within a specified range. Then time, that ensure a valid time within a specified time. There are also more option, you can see, you can check by using that. Now 7th question is what is line graph। तो line graph क्या है, it is a type of chart used in Excel that display data as a series of point connected by a straight line। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, कुछ भी हमारा डाटा होगा वो एक पॉइंट से उसे हाईलाइट कर देगा, देन वो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, सो दिस चार्ट इज कॉमनली यूज टू शो ट्रेंड ओवर टाइम। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हम बताना भूल जाते हैं कि कौन सा चार्ट किस लिए यूज होता है। ठीक है, सो लाइन ग्राफ किस लिए होता है, यूज टू शो ट्रेंड ओवर टाइम। ठीक है, एंड अनदर कंटिन्यूस वेरिएबल, अगर हमें किस अपने डाटा में वेरिएबल की कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूटी दिखानी है, उसके लिए भी हम क्या यूज करते हैं, लाइन ग्राफ यूज करते हैं। अनलाइक अ बार चार्ट दैट डिस्प्ले डाटा एज अ बार अरेंज इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉलम, a line chart display data point that are connected by a line। okay, so this chart is useful in analyzing the trend pattern in data and is commonly used in business and scientific field। now we have another question, how to add trend line to a line graph। trend line हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने ग्राफ में। तो ये भी बहुत सिंपल है, हमें बेसिकली करना क्या है, अपने चार्ट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसमें वही हमें प्लस आइकन एक शो होगा, उसमें हमें चार्ट एलिमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, देन क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू ट्रेंड लाइन, हमें उसमें एक ऑप्शन मिलेगा डेट इज ट्रेंड लाइन, वी हैव टू सिलेक्ट। कस्टमाइज, हम अपनी ट्रेंड लाइन को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, लाइक उसमें कलर ऐड, हमें कोई कलर मॉडिफिकेशन करना है, या फिर लाइन जो हम शो कर रहे हैं उसे थोड़ा थिक दिखाना है, तो ये सब मॉडिफिकेशन के उसमें ऑप्शन आते हैं। तो जैसे लाइन कलर, लाइन स्टाइल, द टाइप ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस टू यूज। ओके, सो ये ट्रेंड लाइन हो गया। उसके बाद है व्हाट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ चार्ट इन एक्सेल दैट डिस्प्ले द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। सो हिस्टोग्राम क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है न्यूमेरिकल डाटा की। ये क्या होता है, कॉलम चार्ट होता है डेट ग्रुप डाटा इनटू अ बीन्स में डाटा को डिवाइड करता है, या हम उसे इंटरवल्स भी कह देते हैं। और ये क्या करता है, ये इट शो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस इन ईच बीन्स। ओके, जो इसके बीच बीन होते हैं वो हमें क्या शो करते हैं, फ्रीक्वेंसी शो करते हैं, कि बेसिकली कोई भी कॉलम है कि कोई भी कैटेगरी है वो कितनी बार अक्कर हुई है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम ईच बीन में देख सकते हैं। ओके, सो द बार इन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द काउंट और परसेंटेज ऑफ डाटा वैल्यूज दैट फॉल विद इन ईच बीन। now after that you can also say this that how we can create histogram। so we have to go in insert tab, then select histogram chart, then Excel will generate default histogram, then we can customize it। okay, और हम उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, ये किस लिए यूज होता है, स्टैटिकल एनालिसिस के लिए यूज होता है। ओके, सो दिस ऑल यू कैन से इन योर आंसर। आफ्टर दैट व्हाट आर सम प्रोज एंड सम कॉन्स ऑफ यूजिंग एक्सेल फॉर डाटा एनालिसिस। सो इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स क्या है एक्सेल के। सो ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये इजी टू यूज है। वर्सटाइल है, वर्सटाइल मतलब एक्सेल ऑफर अ रेंज ऑफ टूल्स। ठीक है, एंड फंक्शन दैट अलाउ यू टू परफॉर्म वेराइटी ऑफ डाटा एनालिसिस टास्क। थर्ड क्या है, फैमिलियर है। ठीक है, ये बहुत इजी था, लो कॉस्ट है और फ्लेक्सिबल है, ये सब हमें पता ही है। और इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकता है, ये हमें बेसिकली लिमिटेड डाटा साइज प्रोवाइड करता है, लिमिटेड डाटा विजुअलाइजेशन प्रोवाइड करता है। लाइक अब हमारे पास और भी अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं लाइक पावर BI, टैब्लो, तो वो हमें ज़्यादा अच्छे फंक्शन प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू एक्सेल। लाइक डाटा क्वालिटी इशू है इसमें। ठीक है, लिमिटेड स्टैटिकल एनालिसिस है, बेसिकली ये हमें फंक्शन एज कम्पेयर टू अदर्स कम प्रोवाइड करता है।
सिक्योरिटी रिस्क है। ओके, आफ्टर दैट व्हाट इज पाइवेट टेबल इन एक्सेल? दिस इज सेम क्वेश्चन। No, this is different. First is pivot chart. This is pivot table. क्या है? Pivot table is a powerful feature in Excel that allow you to summarize and analyze large amount of data quickly and easily. You can use pivot table to organize, sort, filter, तो pivot table भी एक अच्छा फीचर है एक्सेल में, जो क्या करता है, हमें फीचर्स प्रोवाइड करता है बहुत सारे कि हम अपनी टेबल में डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेट करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू वैलिडेट data entry in Excel? This is same question that is about the data validation. Okay, so you can use data validation. हम अपने डाटा एंट्री जो भी हम एक्सेल में कर रहे हैं उसे वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? बाय यूजिंग अ डाटा वैलिडेशन ऑप्शन इन एक्सेल टू सेट रूल्स ऑफ डाटा एंट्री दैट एंश्योर ओनली वैलिड डाटा इज एंटर। ओके, so we can set rules such as requiring a certain format, limiting data entry to a specific range, or even creating a custom rule. अब हम अपने rules भी बना सकते हैं अगर हमें कुछ और add on करना है तो। Next we have third, what are some common chart types in Excel? When would you use them? सो बेसिकली इसमें सम चार्ट टाइप्स के बारे में पूछा है, कौन कौन से चार्ट हम एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं, लाइक लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट, स्कैटर प्लॉट, हिस्टोग्राम। सो इन सब के बारे में आप बता सकते हो, और सबके बारे में पता भी होना चाहिए कि वो किस लिए यूज होते हैं। लाइक लाइन ग्राफ क्यों यूज होता है? टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम। ये मैंने आपको अलग अलग भी करवा दिया है, इसकी इनके बारे में ये कुछ वर्ड्स, हर ग्राफ के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है जो आपको मेमोराइज होने ही चाहिए। लाइक बार ग्राफ टू कंपेयर वैल्यूज, एंड पाई चार्ट क्यों यूज होता है? टू शो प्रोपोर्शन। ओके, हिस्टोग्राम का भी किया था कि वो बीन्स क्रिएट कर देता है और फ्रीक्वेंसी शो करता है। ओके, नाउ 14th क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ कैन यू फिल्टर डाटा इन एक्सेल? तो फिल्टर कैसे कर सकते हैं हमारे अपने डाटा को? यू कैन यूज एक्सेल फिल्टरिंग कैपेबिलिटीज टू डिस्प्ले ओनली द डाटा यू वांट टू सी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यू कैन अप्लाई फिल्टर्स टू कॉलम, अपने रोज में हम फिल्टर लगा सकते हैं, कोई स्पेसिफिक वैल्यू पे हमें फिल्टर लगाना है, उसे शो करना है, हाइड करना है, तो हमारे पास बहुत सारे फिल्टर के ऑप्शन हैं। रो, कॉलम, बेसिकली एक स्पेसिफिक सेल पे हमें लगाना है फिल्टर, तो ये सब हम कर सकते हैं। सो व्हाट आर द सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वर्किंग विद डाटा इन एक्सेल? सो सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वर्किंग विद डाटा इन एक्सेल, हम इसमें ये कुछ पॉइंट्स याद मेमोराइज करने हैं कि एक सबसे पहले टू एंश्योर डाटा एक्यूरेसी, हमारा जो भी हमें डाटा ऐड कर रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज डाटा लॉजिकली सारा डाटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, अच्छे से जो फॉर्मूला यूज है वो यूज होने चाहिए, फंक्शन टू बी ऑटोमेट कैलकुलेशन फंक्शन यूज होने चाहिए, ताकि अगर हम कोई सेल आगे एड ऑन भी कर रहे हो तो उस पर वो फंक्शन अपने ऑटोमेटिकली लग जाए, ठीक है। So basically these are the some best practice for working with data in Excel. Now how can you use Excel shortcut to work more efficiently? So there are the some एक्सेल शॉर्टकट, इसकी मैं अलग से भी वीडियो बना दूंगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट है एक्सेल के लिए वो सब होंगे, तो ये अभी कुछ देख लो। फर्स्ट है Ctrl+C टू कॉपी, Ctrl+V टू पेस्ट, Ctrl+Z to undo, and F4 to repeat the last action. Okay. Now how can you create a chart in Excel? What are the some brackets? This is the same question. So you can see to create a chart in Excel, we first need to select the data. Then we want to then we can select the chart, what type of chart we want, and what best fit टू आर डाटा। सम प्रैक्टिस में वही सेम क्वेश्चन सेम आंसर कर सकते हैं कि एक्यूरेट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, चार्ट के लिए लेबल्स होने चाहिए कौन साइज, ओके, कलर सिलेक्शन अच्छी होनी चाहिए, डेटा आर इजी टू रीड, टाइटल इंक्लूड होने चाहिए, एंड डेट समराइज द चार्ट इन मेन मैसेज। ओके, ये सब हम अपने मतलब टू क्रिएट अ चार्ट के बारे में क्या क्या सही होना चाहिए सब कुछ हम बता सकते हैं। After we have a question, how can you use pivot table to analyze the data? So this is also same. तो pivot table क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है? टू समराइज द डाटा बाय कैटेगरी, ठीक है। हम पावर टेबल में क्या कर सकते हैं, अपने डाटा को कैटेगरीज वाइज समराइज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें हमारे पास ऑप्शन होते हैं फिल्टर लगाने के, जिसके हिसाब से हम उसे कैटेगरी कर सकते हैं, ठीक है, किसी स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफिक सेल या रो को। देन कैलकुलेट कर सकते हैं टोटल, एवरेज, देयर आर वेरियस फंक्शन अवेलेबल, फिल्टर कर सकते हैं स्पेसिफिक ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे, ठीक है। सो पावर टेबल अलाउ अस टू कैलकुलेट टू क्विकली चेंज द लेआउट ऑफ द डाटा टू एक्सप्लोर डिफरेंट एंगल। तो हम यूजिंग पावर टेबल अपने लार्ज डाटा सेट को डिफरेंट एंगल से देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ से कुछ डाटा जो हमें स्पेसिफिक चाहिए उसे गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज हिस्टोग्राम? ये क्वेश्चन हमने कर लिया था।
Histogram is a type of chart in Excel that show distribution of chart over a range of value. Okay, so ये क्या करता है, ये क्या शो करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा. बेसिकली हमने किया था फ्रिक्वेंसी शो करता है इन बीन्स में. ठीक है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज मॉडिफाई हुआ है बस. यू कैन यूज अ हिस्टोग्राम टू आइडेंटिफाई पैटर्न इन डाटा सच एज वेदर द डाटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और स्क्वीड और टू आइडेंटिफाई द आउटलेट्स और एनोमलीज इन द डाटा. सो बेसिकली ये सब चीज़ें देखने में बहुत इजी लगती है, पर जब इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछता है तो हम इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते जैसा इंटरव्यूअर को चाहिए. ठीक है, तो ये स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमें रिमेंबर रखने चाहिए हर चार्ट के बारे में कि वो किस लिए यूज़ होता है. ठीक है, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट आर सम बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वर्किंग विद पावर टेबल. वही सेम है, बेस्ट प्रैक्टिस आ जाए तो उसमें आपको ये ऐड कर सकते हो कि डाटा ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए. ठीक है, फिल्टर यूज हुए होने चाहिए, स्लाइसर्स हम ऐड कर सकते हैं अपने डाटा पे. ये सब कुछ हम सम बेस्ट प्रैक्टिस क्या क्या कर सकते हैं ये सब कुछ बोल सकते हैं. नाउ व्हाट इज स्टोरी टेलिंग विद डाटा. स्टोरी टेलिंग में क्या होता है, जब स्टोरी टेलिंग में हम अपने डाटा को विजुलाइज कर रहे हैं इन अ स्टोरी to tell a story or to convey a message to an audience. Like storytelling with data refer to the process of using data and visualizing to tell a story or convey a message. Like हमने अपने डाटा को भी खोल रखा है और उसका विजुलाइज वे भी खोला हुआ है, तो हम दोनों को खोलकर अपनी एक स्टोरी टेल कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को या हमें जिसको भी डिस्क्राइब करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्टोरी टेलिंग बोलते हैं. इट इज़ एसेंशियल बिकॉज इट हैव्स टू कम्युनिकेट कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट इज ईजी टू अंडरस्टैंड. तो ये क्या करता है स्टोरी टेलिंग, अगर हमारा डाटा ज़्यादा बड़ा है तो हम उसे विजुलाइज वे में दिखाकर उसे शॉर्ट में अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हम कन्वे करना चाहते हैं अपने डाटा के थ्रू वो बता सकते हैं. ठीक है, सो स्टोरी टेलिंग वो होती है एक्सेल में. नाउ why is data visualization important in storytelling? Data visualization is critical in storytelling because it helps to convey information in a way that is easier to understand and visually appealing. Basically हम अपने डाटा को ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं जब हम विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं. अब डाटा सेट है, अगर हम डायरेक्ट डाटा अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट डाटा में कितनी भी रोज कॉलम हो सकते हैं 3000 4000, तो उस पूरे को समझना मुश्किल हो जाता है. पर डाटा यूजिंग अ डाटा विजुअलाइजेशन लाइक अब हम अपने डाटा को चार्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, या कोई बेसिक कुछ बेसिकली हम जैसे कुछ रोज उठा के उसका डाटा हम दिखा सकते हैं, उस पर हम फिल्टर्स लगा सकते हैं. ठीक है, तो डाटा विजुअलाइजेशन क्या करता है, हम अपने डाटा सेट को बहुत ईजियर समझ पाते हैं और दूसरे को भी कन्वे, जो हम इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं वो अच्छे से कर सकते हैं. तो ये क्या करता है, इट अलाउ द ऑडियंस टू सी पैटर्न्स, ट्रेंड्स, रिलेशनशिप that may not be immediately apparent when looking at the raw data. जब हम इतनी बड़े डाटा सेट को देखते हैं, मे बी वो रिलेशनशिप हमें ना शो हो, जो पैटर्न हम शो करना चाहते हैं मे बी वो शो ना हो, पर जब हम डाटा विजुअलाइजेशन यूज़ करते हैं वो बहुत आसानी से हम कन्वे कर पाते हैं. नाउ हाउ डू यू चूज अ राइट चार्ट फॉर डिफरेंट डाटा सिनेरियो. सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा चार्ट किस लिए यूज़ होता है. ठीक है, जब भी हम राइट चार्ट चूज कर सकते हैं. लाइक हमें पता है कि लाइन चार्ट क्यों यूज़ होता है, टू शोइंग द ट्रेंड ओवर टाइम. ठीक है, बार चार्ट क्यों यूज़ होता है, टू फॉर कंपेयरिंग दी कैटेगरीज. सो ऐसे ही हमें हर चार्ट के बारे में पता होना चाहिए, फिर हम क्या शो करना चाहते हैं. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अपने चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ गुड विजुअलाइजेशन. द प्रिंसिपल ऑफ गुड विजुअलाइजेशन, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होना चाहिए, रेलिवेंस होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड होना चाहिए, जो भी हमने डाटा सेलेक्ट किया है मतलब उसके बेस पे होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, रेलिवेंट टू मैसेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे. ओके, सो कॉन्टेक्स्ट हमारा सबसे क्रूशियल होता है फॉर डाटा विजुअलाइजेशन. इट हेल्प्स द ऑडियंस अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ डाटा की वो डाटा का सिग्निफिकेंस क्या है. हाउ कैन यू यूज एक्सेल टू क्रिएट कंपाइलिंग डाटा विजुअलाइजेशन. एक्सेल को हम कैसे यूज कर सकते हैं डाटा विजुअलाइजेशन के लिए, तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है. एक्सेल क्या करता है, एक्सेल हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल, अ रेंज ऑफ टूल्स, फीचर्स प्रोवाइड करता है डाटा विजुअलाइजेशन, जिसके थ्रू हम डाटा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं. लाइक क्या क्या प्रोवाइड करता है, चार्ट्स प्रोवाइड करता है, ग्राफ प्रोवाइड करता है, टेबल प्रोवाइड करता है, और इसमें भी हम चार्ट्स में फिल्टर्स लगा सकते हैं, स्लाइसर्स लगा सकते हैं, मैनी ऑप्शन कलर्स सेलेक्ट कर सकते हैं. तो एक्सेल क्या करता है, हमें रेंज ऑफ टूल्स एंड फीचर्स प्रोवाइड करता है. सो वी कैन सेलेक्ट दिस टूल टू क्रिएट क्लियर, एक्यूरेट एंड विजुअलाइज
appealing visualization that help to tell a story with data. So these are 25 question of Excel that we have discussed today. I'm gonna come with more question of Excel. So till now, thank you. Please share and subscribe my YouTube channel. Thank you.